So now we are going to discuss FTP, that means फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. सो इससे पहले अभी हमने HTTP प्रोटोकॉल डिस्कस किया था. सो HTTP प्रोटोकॉल आपका स्टेटलेस प्रोटोकॉल था, बट FTP इज ए स्टेटफुल प्रोटोकॉल. सो FTP is an example of a stateful protocol. We will see that how it is stateful. So let's see first what is the task of FTP. So full form से ही आपका पता चल जाएगा. FTP means file transfer protocol. File transfer protocol. Okay, so that means you can say all after reading the full form that this is the protocol that actually does transfer of the files between two remote devices. Okay, so now this protocol is actually a client server based protocol. So it is also a client server based protocol. So as per the architecture, you will have a single server that is called file server. So आपके पास एक single server होगा that will host a set of files, bunch of files. That server is called FTP server, or you can sometimes simply say loose term है file server. ठीक है, loosely you can say file server. So this file server or FTP server will host a set of files there. Okay, these files may be of audio, video, PDF or documents as well. Okay, any kind of files may be there. Then you will have a number of clients. These clients can request files from the server, and they can also upload the file to the server. So it works vice versa, both the way. It can upload the file, it can download the file. Okay, so let me come to the diagram. That the diagram is more better. So you have a FTP server, and this server have its own file system, and it hosts the files there. Then you will have a client. So the client, since this is a client server protocol, so you will have a number of clients. Now your client है, so this client machine will have some components or some elements, but that will be, one is FTP client application. So generally आपने FTP client application के तौर पर नाम सुना होगा FileZilla application. Have you heard about FileZilla? It is a popular file transfer application. So आपने हो सकता है यूज भी किया होगा FileZilla. So it is a client application that is called FTP client. So this FTP client will have a user interface, FileZilla के user interface. So जो भी client होगा, और भी कोई client हो सकते हैं, तो उसका एक अपना user interface होगा जिससे user interact करता है. And this is running on some client machine, and client machine will also have its own file system that is called local file system. So आपकी जो मशीन है उसके पास क्या क्या है, एक क्लाइंट एप्लीकेशन है जिसका खुद का एक इंटरफेस है, FTP क्लाइंट की बात कर रहा हूँ मैं. ओके, और आपकी लोकल मशीन का, जो आपकी मशीन है उसका एक लोकल फाइल सिस्टम है. नाउ इन दोनों मशीन्स के बीच में जो फाइल ट्रांसफर होता है, दैट विल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP. Okay, so FTP protocol is being specified in RFC 959. So you can find out the detail in RFC 959 about this protocol. Complete detail आपको अगर इस प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ना है तो आपको RFC 959 में डिटेल मिल जाएगी. So you can go through that. Okay, now FTP protocol actually दो पोर्ट इस्तेमाल करता है. So जिसमें से एक पोर्ट यहाँ पर 21 है, एक पोर्ट है 20. So let's talk about something more. Now FTP protocol is a stateful protocol. So what is the meaning of a stateful protocol? Obviously the meaning of a stateful protocol is that it keeps track of the activities of the user, what user was doing in the session.
सो दैट मीन्स इट मेंटेन्स सेशंस अमंग यूजर्स। सो ये जो है ना जितने भी स्टेटफुल प्रोटोकॉल्स होते हैं दे यूजेज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेशन, ओके, लॉगिन सेशन यू कैन से। सो जब सेशन की बात आती है तो दैट मीन्स ईच यूजर विल हैव ए यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, तभी आप यूजर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। So in case of FTP protocol, each user is giving a username and password, and whenever user want to download a file, so suppose this user want to download file from this FTP server, so first it will just type the address of this FTP server in this client, FTP client। जो FTP client application है यहाँ पर इंटरफेस की मदद से suppose this user is Alice, so Alice will type the address of this server, ओके, FTP सर्वर का एड्रेस टाइप करते हैं एंड देन इट जस्ट पुश ए बटन दैट इनिशिएट द कनेक्शन, ओके। सो FTP सर्वर जो है, FTP प्रोटोकॉल ऑल्सो यूजेज द सर्विस ऑफ TCP प्रोटोकॉल एट ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, TCP प्रोटोकॉल इज यूज्ड एट ट्रांसपोर्ट लेयर, ओके। सो व्हेनेवर Alice presses the button to connect to the server, so a TCP connection is initiated between client and server, ठीक है। सो एक्चुअली इसमें दो TCP कनेक्शन एस्टैब्लिश होते हैं। सो दूसरे के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले जो TCP कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है दैट इज एस्टैब्लिश्ड ऑन पोर्ट नंबर 21, ओके। सो पहले जो TCP कनेक्शन क्लाइंट और सर्वर के बीच में होगा, कब होगा? इमीडिएटली जब आपने अपना FTP सर्वर का एड्रेस पास किया। सो एड्रेस पास करके आपने एक कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट इशू कर दी। तो कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट इशू करने के लिए एक्चुअली आपको क्लाइंट एप्लीकेशन जो भी है, लेट्स से फाइलज़िला है, तो आपको उसमें URL डालना पड़ेगा FTP का सर्वर का, एंड देन आप कनेक्ट के लिए प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही आप कनेक्ट बटन प्रेस करते हैं, इन दोनों के बीच में एक TCP कनेक्शन सेटअप होगा पोर्ट नंबर 21 पर, जिस कनेक्शन को हम बोलते हैं कंट्रोल कनेक्शन। तो TCP का जो कनेक्शन होगा, तो पहला कनेक्शन जो सेटअप होता है दैट इज कंट्रोल कनेक्शन, ऑन पोर्ट नंबर 21, ठीक है। नाउ जो कंट्रोल कनेक्शन जब सेटअप हुआ है, तो इस पर अब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी क्लाइंट और सर्वर के बीच में। सो क्या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, लेट्स सी। सो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि ये प्रोटोकॉल जो है ना स्टेटफुल है, सो दैट मीन्स इट कीप ट्रैक ऑफ द यूजर्स एक्टिविटीज, ओके। सो यूजर की एक्टिविटीज को कैसे ट्रैक करेंगे, तो इसके लिए यूजर को यूजर नेम और पासवर्ड इशू किया जाता है। तो यूजर को अब जैसे ही कंट्रोल कनेक्शन इशू हो गया, यूजर को अपने आप को ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा। तो ऑथेंटिकेशन के लिए यूजर अपना यूजर नेम भेजेगा पहले, और जब यूजर नेम ओके है देन यूजर विल सेंड द पासवर्ड, और पासवर्ड इज ओके देन कनेक्शन इज सेटअप, ओके। और जब कनेक्शन सेटअप हो गया तो अब सर्वर के फाइल सिस्टम को क्लाइंट देख सकता है। तो दैट मीन्स यूजर कैन सी द फाइल सिस्टम ऑफ द सर्वर। सो फाइल सिस्टम में ओबियसली यूजर विल हैव ए करेंट डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में नेविगेशन कर सकता है। सो यूजर विल हैव सम करेंट डायरेक्टरी, एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी खुलेगी और फिर यूजर अपनी डायरेक्टरी चेंज कर सकता है। तो डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में, जैसे आप अपनी मशीन में जाते हो ना, एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में, और फिर ड्राइव के अंदर एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में, देन उसके सब फोल्डर में एंड सो ऑन। तो इसको कहते हैं डायरेक्टरी के अंदर नेविगेशन करना। तो सिमिलरली क्लाइंट भी जो ना, जो यूजर है वो सर्वर की डायरेक्टरीज में भी नेविगेट कर सकता है, और इसके लिए वो कमांड कुछ यूज होती हैं। तो आपको तो इंटरफेस में कुछ जगह पर क्लिक्स करने हैं होते हैं, लेकिन जब आप क्लिक करते हैं तो एक्चुअली यूजर जो एजेंट है आपका, जो क्लाइंट एप्लीकेशन है, वो आपके बेस रिक्वेस्ट पर कुछ कमांड्स जो ना FTP सर्वर को इशू करता है, और फिर FTP सर्वर आपकी डायरेक्टरीज को चेंज करता है, वर्किंग डायरेक्टरीज को टाइम टू टाइम एज पर रिक्वेस्ट। तो वो सारी रिक्वेस्ट जाती हैं आपके कंट्रोल कनेक्शन पर। सो जितने भी कमांड्स हैं, डायरेक्टरी चेंज करना है, यूजर नेम पास करना है, पासवर्ड पास करना है, फाइल डाउनलोड के लिए कमांड इशू करना है, तो ऑल कमांड्स आर शेयर्ड ऑन दिस कंट्रोल कनेक्शन। तो कंट्रोल कनेक्शन का काम क्या है? यूज्ड टू शेयर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। जो जितने भी इस तरीके की कमांड्स होती हैं, कमांड्स जिनको हम कंट्रोल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, एक्चुअली जो आपका डेटा नहीं है उसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है दैट इज कॉल्ड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। डेटा के अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन होती है दैट इज कॉल्ड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। सो इसमें आपकी कमांड्स और ऑल दैट आता है। कमांड्स हैं, कई सारे पैरामीटर्स जो आप पास करते हैं, लाइक ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के लिए जो भी पैरामीटर्स हैं,
वो। सो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जो है ना कंट्रोल कनेक्शन से जो पोर्ट नंबर 21 पर है उससे शेयर होती है। यूज टू शेयर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन टू द between the clients and server. ओके, नाउ जब आप मान लीजिए आपने एक कोई फाइल देखी और आपको लगा आई यू नीड दिस फाइल, तो आप उस फाइल पर फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डाउनलोड के लिए भी आप कमांड इशू करते हैं, तो दैट कमांड विल ऑल्सो गो थ्रू द कंट्रोल कनेक्शन। जैसे ही आप एक फाइल के डाउनलोड के लिए इनिशिएशन करते हैं तो क्या होगा, एक और टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, अनदर जैसे हम बोलते हैं डेटा कनेक्शन। तो एफटीपी में एक जैसे ही आप फाइल डाउनलोड करना या अपलोड करना स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखना टीसीपी जो आपका एफटीपी प्रोटोकॉल है बाई डायरेक्शनल है। दैट मीन्स यू कैन डाउनलोड द फाइल्स, यू कैन अपलोड द फाइल्स ऑल्सो टू द सर्वर। जबकि एफटीपी में एचटीटीपी प्रोटोकॉल में क्या होता था, क्लाइंट कैन ऑलरेडी सेंड द रिक्वेस्ट, आप कुछ अपलोड नहीं कर सकते थे जब तक एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज वाला काम ना करें। नॉर्मली आप देखेंगे तो आप क्या करते हैं, सिर्फ डाउनलोड करते हैं सर्वर से वेब पेजेस, यू डू नॉट अपलोड एनीथिंग। ओके, बट एफटीपी में आप अपलोड डाउनलोड दोनों काम करते हैं। सो जो भी अपलोडिंग या डाउनलोडिंग होगी, जब भी आप कुछ अपलोड करने के लिए कमांड इशू करते हैं या डाउनलोड करने के लिए कमांड इशू करते हैं, जो एफटीपी प्रोटोकॉल ओपन से न्यू टीसीपी कनेक्शन ऑन पोर्ट नंबर 21, सॉरी, तो जो नया कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा वो पोर्ट नंबर 20 पर होगा, और दिस कनेक्शन इज कॉल्ड डेटा कनेक्शन। एंड जनरली दीज कनेक्शंस आर मल्टीपल पैरेलल कनेक्शंस। ओके, ये पैरेलल कनेक्शन होते हैं, और ये कनेक्शंस कैसे होते हैं, फाइल ट्रांसफर कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। सो दैट मीन्स ये कैसे हैं, नॉन परसिस्टेंट कनेक्शंस होते हैं। सो जितने भी डेटा कनेक्शंस हैं दे आर नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन। एंड आपका जो कंट्रोल कनेक्शन है ये परसिस्टेंट कनेक्शन होता है। तो ये तभी क्लोज होता है जब आप सेशन को लॉग आउट करते हैं, जब आप लॉग आउट करते हैं तब ये क्लोज होता है। ये तो ये परसिस्टेंट कनेक्शन रहेगा, अदरवाइज ओपन रहेगा। ये आप काफ़ी टाइम तक एक्टिविटी ना करें तो ये एक फिक्स टाइम बाद अपने आप क्लोज हो जाता है। ओके, सो ये दो तरीके के कनेक्शन जो है ना टीसीपी ओपन करता है। सो आप ध्यान रखना, जो आपका पोर्ट नंबर 21 पर कंट्रोल कनेक्शन होता है, पोर्ट नंबर 20 पर डेटा कनेक्शन ओपन होता है, जिससे फाइल डाउनलोड होती है। तो फाइल डाउनलोडिंग जो होगी या अपलोडिंग होगी वो डेटा कनेक्शन से होती है। ओके, जो कि पोर्ट नंबर 20 पर एस्टैब्लिश होता है। तो ये भी एक टीसीपी कनेक्शन है। ओके, नाउ वन मोर थिंग आई नीड टू पॉइंट आउट। नाउ जो एफटीपी प्रोटोकॉल है ये आपका आउट ऑफ बैंड सिग्नलिंग इस्तेमाल करता है। आउट ऑफ बैंड सिग्नलिंग एक टेक्निकल टर्म है सिग्नलिंग, मैं अभी एक बताता हूँ क्या है। नाउ सिग्नलिंग का मतलब होता है कि जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने बताया कि प्रोटोकॉल जितने भी होते हैं, तो प्रोटोकॉल्स में जब दो डिवाइस कम्युनिकेट करती हैं तो एक्चुअली डेटा हैपन होने से पहले वो कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, सो दैट बाद में डेटा कम्युनिकेशन हैपन हो पाए। जैसे एक दूसरे को वेरीफाई करना, बैंडविड्थ, अपने बफर के साइजेस को एक्सचेंज करना कि आई कैन एक्सेप्ट डेटा ऑन दिस रेट, आई कैन डिलीवर डेटा ऑन दिस रेट, और अदर पैरामीटर एक्सचेंज करना। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होता है दैट इज कॉल्ड सिग्नलिंग। सो सिग्नलिंग इज ए प्रोसेस ऑफ signaling is a process of control information exchange। ठीक है, तो इसमें कनेक्शन ओपन करना, कनेक्शन क्लोज करना, ऑथेंटिकेशन करना, ऑथेंटिकेशन रिलेटेड पैरामीटर एक्सचेंज करना, एंड देन लॉग आउट करने के लिए कमांड्स इशू करना, किसी और अदर टास्क के लिए कमांड्स इशू करना। सो ऑल द टास्क आर कॉल्ड सिग्नलिंग। ओके ओके, सो जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन का जो एक्सचेंज है दैट इज कॉल्ड सिग्नलिंग, यू कैन से इन ब्रीफ। नाउ जो प्रोटोकॉल्स होते हैं जनरली दो तरीके के सिग्नलिंग मेथड में से मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, आउट ऑफ बैंड सिग्नलिंग
और इन बैंड सिग्नलिंग। सो आउट ऑफ बैंड सिग्नलिंग का मतलब है कि जब आप कंट्रोल इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज डिवाइसेस के बीच में सेपरेट कनेक्ट चैनल के थ्रू कराते हैं या सेपरेट कनेक्शन से करते हैं, जैसा कि एफटीपी में है। एफटीपी के लिए में क्या है, कंट्रोल कनेक्शन के लिए एक सेपरेट कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के एक्सचेंज के लिए, दैट मीन सिग्नलिंग के लिए एक सेपरेट कनेक्शन है पोर्ट नंबर 21 पर। ठीक है, तो इसमें हम कनेक्शन को सेपरेट कर देते हैं। डेटा के लिए अलग कनेक्शन है और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के लिए अलग कनेक्शन है। तो अगर किसी प्रोटोकॉल में हम इस तरीके से काम कर रहे हैं या कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, तो दैट प्रोटोकॉल हम कहते हैं कि ये प्रोटोकॉल आउट ऑफ बैंड सिग्नलिंग इस्तेमाल कर रहा है, जो कि आपका एफटीपी करता है। लेकिन इन बैंड सिग्नलिंग का मतलब क्या है, सेम कनेक्शन पर ही वहीं से डेटा भी जा रहा है और वहीं से कंट्रोल इन्फॉर्मेशन भी जा रही है। तो ऐसे प्रोटोकॉल का जो कम्युनिकेशन मैकेनिज्म है, सिग्नलिंग मैकेनिज्म है, उसे हम बोलते हैं इन बैंड सिग्नलिंग। तो आप देख सकते हैं कि एफटीपी आपका आउट ऑफ बैंड सिग्नलिंग इस्तेमाल करता है। ठीक है, एफटीपी आउट ऑफ बैंड सिग्नलिंग इस्तेमाल करता है, ये थोड़ा रॉन्ग वो दिख रहा है ये। और एचटीटीपी आपका इन बैंड सिग्नलिंग इस्तेमाल करता है। सिमिलरली इन बैंड सिग्नलिंग आगे हम एक प्रोटोकॉल और डिस्कस करेंगे, एसएमटीपी, दैट आल्सो यूजेस इन बैंड सिग्नलिंग। ओके, सो डिपेंड करता है, कुछ प्रोटोकॉल्स आउट ऑफ बैंड सिग्नलिंग इस्तेमाल करते हैं, कुछ प्रोटोकॉल इन बैंड सिग्नलिंग इस्तेमाल करते हैं। तो आपका एफटीपी जो है आउट ऑफ बैंड सिग्नलिंग इस्तेमाल कर रहा है और बाकी जो प्रोटोकॉल्स हैं वो इन बैंड सिग्नलिंग इस्तेमाल करते हैं। ओके, नाउ सो ये तो हो गया सिर्फ कॉन्सेप्ट। नाउ एफटीपी में और एचटीटीपी में डिफरेंस हम साथ साथ डिस्कस करते चल रहे हैं। नाउ एक डिफरेंस और है आपका, एफटीपी जो है, एफटीपी सॉरी जो एचटीटीपी है ये आपका पुल प्रोटोकॉल है। पुल प्रोटोकॉल का मतलब है जो सर्वर से डेटा फैच करता है। तो एचटीटीपी आपका सर्वर पर अपलोड कुछ नहीं करता है। ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस में, वो एडमिनिस्ट्रेटिव को छोड़ करके नॉर्मल यूजर कैन नॉट पुट एनीथिंग ऑन द सर्वर। सो एचटीटीपी एक पुल प्रोटोकॉल है और एफटीपी आपका पुल और पुश दोनों का इस्तेमाल करता है। सो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पुल एंड पुश बोथ। आगे हम देखेंगे एसएमटीपी आपका पुश प्रोटोकॉल होता है, वो केवल इंफॉर्मेशन को पुश करता है। तो प्रोटोकॉल होते हैं, पुल प्रोटोकॉल है, पुश प्रोटोकॉल है या कॉम्बिनेशन है। इसके बेस पर भी हम प्रोटोकॉल्स को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। सो नाउ हम आगे फर्दर आ जाते हैं। ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, आउट ऑफ बैंड सिग्नलिंग, ऑल दैट। नाउ कुछ कमांड्स हैं, उन कमांड्स को हम और डिस्कस कर लेते हैं। सो हालांकि आप जब आप एक एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं ना, इंटरफेस, तो आप इन कमांड्स को डायरेक्टली आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन आपके बिहाफ पर आपका जो क्लाइंट एप्लीकेशन है वो इन कमांड्स को इशू करता है। सो जैसे कि एक कमांड है यूजर नेम। तो यूजर कमांड है जिससे आप अपना यूजर नेम क्लाइंट जो है, क्लाइंट एप्लीकेशन यूजर नेम अपना सर्वर को देता है। तो यूजर कमांड से यूजर स्पेस यूजर नेम, तो जो भी आपका जब आप लॉगिन करते हैं ना उस टाइम पर आप यूजर नेम कमांड जो ना कंट्रोल कनेक्शन पर सेंड करते हैं। तो इस कमांड के इशू होने के बाद सर्वर क्या करता है, आपके यूजर नेम को अपने डेटाबेस में चेक करता है कि इस यूजर नेम का कोई यूजर है क्या। अगर यूजर नेम है तो वो ओके सेंड करेगा रिप्लाई में, एंड देन फिर आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो अब क्लाइंट का एप्लीकेशन का काम क्या होगा, पास कमांड इशू करेगा। तो पास स्पेस पासवर्ड जो भी होगा वो आप पासवर्ड पास करेंगे। तो आप पासवर्ड सर्वर को सेंड करेंगे, सर्वर आपका पासवर्ड वेरीफाई करेगा, इट एवरीथिंग इज ओके। देन सर्वर क्या करता है, लिस्ट कमांड इशू करके आपको फाइल्स जो करंट डायरेक्टरी में जो भी फाइल्स हैं आपकी डिफॉल्ट डायरेक्टरी ओपन कर देता है, और फिर आपको जो भी फाइल्स हैं डिफॉल्ट डायरेक्टरी में उनकी लिस्ट आपको सेंड कर देता है। सो आपका जो एप्लीकेशन होगा आपको दिखाएगा कि करंट डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइल्स हैं। और अब आप जैसे ही उस किसी फाइल पर डबल क्लिक करते हैं तो आपका क्लाइंट एक्चुअली क्या करता है, ये कमांड इशू करता है, RETR मतलब रिट्रीव और फाइल नेम। तो जिस फाइल पर आपने डबल क्लिक किया है, तो जैसे ही डबल क्लिक करते हो तो आपके बिहाफ पर आपका जो एप्लीकेशन है, क्लाइंट एप्लीकेशन फाइलजिला क्लाइंट है, वो एक कमांड इशू करता है RETR और वो फाइल नेम पास कर देता है। तो जैसे ही ये कमांड जाती है
और अगर ये फाइल का एक्सेस आपके पास है तो ये फाइल का डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। तो डाउनलोड होने के लिए शुरू कैसे होता है, आपके फाइल जो ना वो ट्रांसफ़र करना शुरू कर देगा। और उसके लिए वो क्या करेगा, डेटा कनेक्शन ओपन करेगा इमीडिएटली सर्वर, और उस डेटा कनेक्शन पर फाइल ट्रांसफ़र शुरू कर देगा। और जब फाइल ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाएगा, दैट डेटा कनेक्शन विल बी क्लोज्ड बाय द सर्वर। ओके। और अगर आपको कोई फाइल स्टोर करना है सर्वर पर, तो आप स्टोर कमांड इशू करेंगे और फाइल नेम कर देंगे। तो जब आप एप्लीकेशन में वहाँ ऑप्शन होगा किसी फाइल को अपलोड करने के लिए, फाइल सेलेक्ट किया क्लाइंट से और अपलोड बटन पर क्लिक किया, जो भी आपके क्लाइंट में एप्लीकेशन में अपलोड बटन होगा, तो एक्चुअली आपका क्लाइंट ये कमांड इशू करता है, स्टोर एंड जो भी फाइल है वो फाइल नेम। तो सर्वर जो है ना इस फाइल को मतलब ये फाइल आपकी अपलोड होकर के सर्वर के पास पहुंच जाएगी। ओके। सो दीज आर द सम ऑफ द कमांड्स जो कि आपके एफटीपी जो क्लाइंट और सर्वर आपस में एक्सचेंज करते हैं टू सपोर्ट द एक्सचेंज ऑफ द फाइल। एंड देर आर सम ऑल्सो सैम्पल रिटर्न कोड्स, जो जैसे एचटीटीपी में जो है ना एरर कोड थे, उसी तरीके से एफटीपी में भी एरर कोड्स हैं। सेम कन्वेंशन वैसे ही है। आप जो है ना एरर कोड्स अगर डिटेल पढ़ना चाहें तो आपको उसमें क्या कहते हैं, आपकी जो RFC है उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं होता है। स्टेटस कोड में दो चीज़ें होती हैं, एक नंबर होता है जो आपके एरर को रिप्रेजेंट करता है, एरर या जो भी रिस्पॉन्स है सर्वर का उसको इंडिकेट करता है, और उसके साथ एक मैसेज एसोसिएटेड होगा। जैसे 331 सर्वर जब यूज़र नेम वेरीफाई हो जाता है तो क्लाइंट को 331 मैसेज सेंड करता है कंट्रोल चैनल पर, 331 यूज़र नेम ओके, इसका मतलब है कि यूज़र नेम वेरीफाई हो गया है, करेक्ट है। देन साथ में वो ये भी बताता है कि इसका मतलब होता है कि पासवर्ड भेजना है। तो क्लाइंट को जब ये रिस्पॉन्स मिलता है तो क्लाइंट समझ जाता है कि यूज़र नेम हमने जो दिया था वो ओके है, अब पासवर्ड भेजना है, तो वो पासवर्ड सेंड करेगा एंड सो ऑन। तो इस तरीके से क्लाइंट और सर्वर के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है। ये कमांड्स हैं और उनके कमांड्स के किस केस में सर्वर क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, उसका क्या मीनिंग है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दीज कोड्स। और क्लाइंट जो है ना इन कोड्स के मदद से पता लगा सकता है कि उसके रिक्वेस्ट के साथ क्या हुआ है, किस टाइप का रिस्पॉन्स सर्वर से मिला है। ओके, सो दिस वाज योर एफटीपी प्रोटोकॉल। सो आज यहीं क्लोज करते हैं। एनी क्वेश्चन? नो? ओके।